براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر اس نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ریکارڈڈ شو ہوگا جس میں ہم غور کریں گے کتب کی روشنی میں حضور المسیح یسوع مسیح مسیحی خداوند مانتے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں، لیکن اس ماننے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ماضی میں لوگوں نے جب وہ اس زمین پر تشریف لائے تو مانا، اور اس ماننے کے وسیلہ سے کیا کیا برکات ان کو ملی۔ آج بھی عقیدہ اسلام میں اور عقیدہ مسیحت میں جو ہستی نہ تو قبر میں ہے اور نہ برزخ میں ہے، اسلامی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے۔ مسیحی تاریخ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہی ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص فرمان قرآن کو پڑھتا ہے یا اناجیل کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایک شخصیت فرمان قرآن کی روشنی میں سورہ البقرہ، سورہ العمران، سورہ النساء، سورہ مریم اور دیگر بہت سی صورتیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ذات اقدس، ذات المسیح، یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح الگ آیات بہت واضح نہ قبر میں ہیں نہ برزخ میں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ جب ان کی ذات کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے، ان کی خدمات کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک بہت نمایاں صفت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کا لا علاج بیماریوں کے شکار لوگوں پر ان کا رحم، ان کا ترس، جو شفا کی صورت میں، جو قبولیت کی صورت میں، جو اپنائیت کی صورت میں لوگوں کو ملتا تھا، وہ زندہ ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ میں اکثر ان شوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں یہ شو خداوند کے فضل سے، اس کے ترس سے، اور بہت سے لوگ جو میرے مددگار میرے ساتھ ہیں، جو دعا کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے شو ہے، اور اس میں سادگی کے ساتھ ان سچائیوں پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کل بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور سورہ العمران 55 آیت، زبوروں کی تعلیم اور اناجیل کی تعلیم کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن یسوع المسیح کی تعلیمات، ان کی باتیں، ان کی شخصیت سے فیض پاتے رہنا، یہ لکھا ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور جو لوگ علم الآخرت کے طالب علم ہیں، موت کے بعد جو زندگی ہے، مکاشفہ کا مصنف اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن آج جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے حضور المسیح کے وسیلہ سے شفا پانا، لا علاج امراض کا چلے جانا، ختم ہو جانا، اور ان کی جگہ پر شفا کا اور زندگی کا آ جانا۔ فرمان قرآن اس تعلق سے کیا ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور پھر ہم
अनाजील में से भी इसी बात को देखेंगे। मैं आपके सामने सूरह अल इमरान, मोहतरम मौलाना तकी उस्मानी, उनका आसान तर्जमा है और तफसीर उसमें से आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, और यही बात आपको सूरह अल माइदा और उसकी 108वीं, 9वीं, 10वीं आयात, 7वीं आयात का जब आप मुतालिया करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो पहले मैं आपके सामने फरमाने कुरान रख रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ये होता कैसे था और तरीका क्या था। आइए मैं आपके सामने और ये रखता हूँ, गौर कर लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं 49 आयत है, तुम्हारे सामने गारे से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोड़ी को तंदुरुस्त कर देता हूँ। ये पूरी आयत आप पढ़ लीजिए सूरह अल माइदा में, और दीगर जगहों पर भी इसका जिक्र है। मादरजाद पैदाइशी अंधे को, कोड़ियों को, कोड़ उस वक्त ला इलाज समझा जाता था और उसको लानत भी तस्वर किया जाता था। लिखा है मैं शिफा बख्श देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बात हम पर खुली कि यीशु मसीह जो ना कब्र में हैं ना बरज़ख में हैं, वो जो लोग उनके पास आते थे इन अमराज का शिकार, यीशु मसीह उनको शिफा बख्शते थे। तो जब यीशु मसीह इस ज़मीन पर थे तो वो ये काम करते थे। अब ना बरज़ख में हैं और ना ही कब्र में हैं, तो आज भी वो ये काम कैसे करते हैं ये जानना नहायत ज़रूरी है, ताकि अगर हमें तरीका मालूम हो कि किसी जगह से अगर हमें मिसाल के तौर पर बैंक से लोन लेना है तो लोन लेने का तरीका क्या है। अगर आपको तरीका नहीं आता, नहीं अपनाते, तो आप सारा दिन बैंक के बाहर खड़े रहें, वहाँ पर आवाज़ें लगाते रहें, जब तक आपको तरीका मालूम नहीं, जो फॉर्म वगैरह फिल करने हैं वो भर के नहीं देंगे, जो कागजात साथ लगाने हैं वो नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको लोन नहीं मिल सकता। इसी तरह अगर आपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है तो एक तरीकाकार है, आप बच्चे को रोज़ाना स्कूल के चौगिर्द घुमाते रहें, क्लास के बाहर भी ले जाएं, वहाँ पर बैठे रहें, बच्चा पढ़ेगा नहीं। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो नहीं होगा। जो तरीकाकार है, अगर आप वो जानते हैं, फॉर्म वगैरह भरेंगे और उसके साथ दीगर लवाजमात, फ़ीस वगैरह जमा करवाएंगे, फिर आपके बच्चे का दाखिला हो जाएगा। जो तरीका है वो नहीं अपनाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज भी मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, यीशु मसीह के बारे में जब नविश्ते बयान करते हैं तो लिखा है कि वो पूरी दुनिया के लिए आए हैं, पूरी दुनिया के लिए। मैं अक्सर अपने शोज़ में इस पर बात करता रहता हूँ, इसलिए कि जो भी लोग उनके पास आए, किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी मज़हब से, हुज़ूरुल मसीह की ज़ात से उनको फैज़ पहुँचा। तो ये होता कैसे था, तरीकाकार क्या है, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मत्ती की अंजील में से कि यीशु मसीह का तरीकाकार क्या था जब वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात करते थे। तो ये होता कैसे था। मेरे साथ आप मत्ती की अंजील के 9वें बाब में आ जाएं, तो 27वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। चूँकि जब तक आप सुनेंगे नहीं लोग कैसे उनके पास आए, कैसे उन्होंने उनके साथ राबता किया, और जब बातचीत हुई तो किस तरह से जिस मकसद के लिए वो आए वो मकसद उन्होंने पाया। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, गौर से आप सुनिए और देखिए ये होता कैसे था। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले
کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ تو یہ اندھے ہیں، اے ابن داؤد۔ یہ ابن داؤد دراصل جو مسیح مسیح یہودیوں کو انتظار تھا، یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ وہ داؤد کے خاندان سے آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ آزاد کرے گا۔ یسایہ کی کتاب 61 باب، وہ اندھوں کی آنکھیں بھی کھولے گا۔ تو یہ اس بات سے واقف تھے۔ واقفیت بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح مسیح اندھوں کی آنکھیں کھولے گا۔ فرمان قرآن سورہ ال عمران، سورہ المائدہ 107، 8، 9 المائدہ میں، اور 49 اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی ہے۔ تو پہچان ضروری ہے کہ آپ کس کے پاس آ رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو کیا مل سکتا ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے پکارتے ہوئے یہ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، اور یسوع نے ان سے کہا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر خاص نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ راہ میں ہیں۔ یسوع مسیح آگے بڑھا تو دو اندھے پیچھے راہ میں ہیں، اور وہ راہ میں رک نہیں گئے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یسوع کو پکار رہے ہیں، میں بہت سے لوگ میرے دل میں ہے اس وقت، بہت سے لوگ مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن انہوں نے پکارنا اور پیچھا کرنا ترک نہیں کیا جب تک ان کی بات نہیں ہو گئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ پکارتے ہوئے چلے، ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، گھر میں گئے ہیں، اور یہ اندھے رکے نہیں، باہر نہیں ٹھہرے، گھر میں آ گئے، اور یسوع نے ان سے کہا، بات چیت شروع ہو گئی ہے، تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہارا ایمان ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ مجھ پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ یہ جب انہوں نے کہا نا ہاں خداوند، تو اگر آپ زبور 146 اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو میں آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے۔ زبور 146 8، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ یہودی معاشرہ ہے، اور وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ خدا کی قدرت، خدا کی صفت، خدا کی محبت کہ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہاں اے خداوند تو انہوں نے کہا، اس سے کہا ہاں خداوند، ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ اب انہوں نے کہا ہاں تو کر سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر، وہ چھوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا کا مطلب ہے خداوند کی تعریف ہو۔ اور میرا دل پچھلے تقریباً 30-40 سال سے خدمت میں ہوں، وہ چھوتا ہے۔ قبر اس کی خالی ہے، وہ برزخ میں نہیں ہے۔ یہاں پر متی کی انجیل، متی کے نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش، خدا کا تحفہ، اور متی پیش کر رہا ہے خدا کی بخشش، خدا کا تحفہ۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بخشش کے طور پر ہے۔ یہ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، یہ کوئی اپنی نیکیاں لے کر نہیں آ رہی، اپنے ریاضتیں لے کر نہیں آ رہے، آگے بھی ہم دیکھیں گے، وہ کوئی اپنے چڑھاوے لے کر نہیں آ رہے، وہ کسی اپنی راست بازی پر مان کرتے ہوئے اس کو لے کر نہیں آ رہے۔ وہ جس بھی حالت میں ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ان اندھوں نے پکارا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا۔ جب یسوع چھوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں
کھل گئیں۔ یسوع جب چھوتا ہے بند آنکھوں کو وہ کھل جاتی ہیں۔ اب آنکھوں کی جگہ پر کوئی بھی ایسا مسئلہ، ایسا چیلنج، ایسی مشکل جو آپ کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اندھے شخص کے لیے ہر چیز اندھیرا ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں اپنی شخصی زندگی سے آپ کو بتا سکتا ہوں، جب حالات تاریک لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں پھر اس کے حضور میں جا کر اس کو پکارتا ہوں کہ اے یسوع مسیح خدا کے بیٹے ابن داؤد چھو دے۔ اور جب وہ چھوتا ہے اندھے پن کی جگہ پر بینائی اور شفا آ جاتی ہے۔ اس نے ان کو چھوا اور ان کی آنکھیں کھل گئی، تاریکی کی جگہ پر روشنی آ گئی۔ میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے بوجھ کے ساتھ، آپ ایماندار ہیں، آپ غیر ایماندار ہیں، آپ یسوع کو جانتے ہیں، یسوع کو نہیں جانتے، زندگی میں کوئی بھی حصہ اگر اس وقت تاریکی کے اندر ہے، آپ اس سے نکل نہیں پا رہے، آپ کے پاس ہجوم ہیں، لیکن ان ہجوموں میں بھی آپ کے پاس ابن آدم نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ ان اندھوں نے سنا کہ یسوع مسیح ابن داؤد گزر رہا ہے، وہ پکارنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر رحم کر، ہمیں تیرے رحم کی ضرورت، تیرے ترس کی ضرورت ہے، تیرے چھوئے، تجھ سے یہ درخواست ہے کہ تو ہم کو چھو لے۔ لیکن ان کے دل کی خواہش، اور یسوع مسیح نے ان کو چھو دیا۔ یسوع مسیح زندہ ہیں، عقیدہ اسلام کے مطابق، عقیدہ مسیحیت کے مطابق ایک ہی شخصیت ہے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے اسلامی تعلیم کے مطابق، ان میں سے حضور المسیح زندہ ہیں۔ یہ اس وقت جب وہ زمین پر خدمت کرتے تھے، اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ اب یہاں پر کوئی نہ جانے، علماء اس بات سے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کو کہتے تھے کہ جا کر گواہی دو، اور کبھی کہتے تھے کہ تم نہ اس بات کا شہرہ نہ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علماء جو 2-3 باتیں کرتے ہیں، جلدی سے بتاؤں گا۔ ایک تو یسوع مسیح جس علاقے میں تھے وہاں پر لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، مخالفت بہت زیادہ تھی، تو تم نے شفا تو پالی ہے لیکن اب اس کا چرچا نہ کرو۔ خداوند کہہ رہے ہیں تم جاؤ، لیکن انہوں نے ہر جگہ پر چرچا کر دیا۔ گو مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ نہ کرنا، لیکن یسوع مسیح کبھی بھی کنڈیمڈ نہیں کرتے، وہ رد نہیں کرتے، وہ پھر بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو شفا ملتی ہے ان کا بھی شہرہ ہو جاتا، ان کی بھی شہرت ہو جاتی تھی۔ دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کی شہرت پھیلتی تھی، لوگ بتاتے تھے، تو جو اس علاقے کے، اس دور کے حکمران تھے، سیاسی اور مذہبی زیادہ تھے، چونکہ حسد زیادہ تر مذہبی لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے اور بائبل اس کا ثبوت ہے۔ تو حسد کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جہاں جہاں پر وہ جاتے یا ان کے شاگرد جاتے تھے، اعمال کی کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے سے وہاں پر اس طرح سے لوگوں کو ابھار دیا جاتا تھا کہ یہ زندگی کا پیغام، یہ شفا کا پیغام، لوگوں کے لیے شیطان سے چھوٹنے کی قدرت جو ان کے وسیلہ سے لوگوں کو مل رہی ہے، وہ روکی جائے۔ حسد آج بھی خاص طور پر مذہبی حلقوں میں کسی کی ججمنٹ نہیں کر رہا، لیکن بائبل اس سے بھری پڑی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا تھا کہ فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہنا، اور لکھا ہے فریسیوں کے خمیر سے مراد فریسیوں کی ریاکاری تھی،
ये फरीसी ऐसा ग्रोह था जिन्होंने इखलाकियात, खुदाई सफ़ात, खुदाई अमाल की जगह पर रसूमात को और अपनी खुद साख्ता तालीमात को मज़हब बना दिया था, खुदाई तरीका बना दिया था, और यीशु मसीह इसकी मज़म्मत करते हैं। और वो कहते भी हैं कि ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं जब तालीम देते हैं, वो तालीम तो तुम मानो, लेकिन जो ये करते हैं वो काम तुमने नहीं करने। तो यहाँ पर जो आज हमें मौका मिल रहा है खुदा के कलाम में से सीखने के लिए, दो ग्रोह हैं। एक तो वो हैं जो मसीह की मुखालफत, उसके लोगों की मुखालफत करते और वजह हसद है। दूसरे वो लोग हैं जो खुदावंद की कुदरत और उसके खादमों के वसीला से जो बरकत मिल रही हैं, जो शिफा मिल रही हैं, जो जिंदगी का पैगाम जा रहा है, वो साथ मिल जाते और मददगार बन जाते हैं, ताकि वो लोग भी जो अंधे हैं, जो कोढ़ी हैं, जो हर तरह से कहीं से उनको कोई हल उनकी मुश्किलों का, बीमारियों का नहीं मिल रहा, उनको हल मिल जाए और वो यीशु अल मसीह की ज़ात अक़दस के वसीला से, उनके हवारियों के वसीला से। और आज भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या तरीका दिया कि आज भी ये काम हो रहा है। और अगर हम यहां पर एक और आयत तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप दो ग्रोहों में हो सकते हैं। मैंने पहले एक वो जो यीशु मसीह से शिफा पाते, जिंदगी पाते, उसके पैगाम को पहुंचाते, और दूसरा ग्रोह वो है जो फरीसियों वाली सरिश्त में आज भी है और वो हसद से, मुखालफत से भरे रहते हैं, और ये उनके अमाल हैं। और यहां पर हमें नजर आता है कि यीशु मसीह की तालीम, यीशु अल मसीह के वसीला से फैज़, उनके हवारियों के वसीला से फैज़ लोगों को मिलता रहा। और 70 ईस्वी में हम देखते हैं कि ये तमाम फरीसी और मजहबी रहनुमा सब के सब खत्म हो गए, लेकिन मेरे यीशु मसीह की शख्सियत, उनकी जिंदगी, उनसे पहुंचने वाला फैज़ आज भी जारी और सारी है। और मेरे खुदावंद का ये वादा है, मत्ती की अंजील में उसने फरमाया था, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और मैं जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मैं आज खादमों से कहना चाहता हूं, अपने बहनों और भाइयों से जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, दुखों में से गुजर रहे हैं, हालात उनके लिए मुश्किल कर दिए गए हैं, मुखालफतें हैं, हसद हैं, आपके लिए कलाम सुनाने के लिए रुकावटें पैदा की जाती हैं, हौसला रखिए, दलेर हो जाइए, यीशु मसीह आपके साथ है। ये उनका वक्त था यीशु के खिलाफ साजिशें करने का, हसद से वो खुदा का पैगाम जो उसके वसीला से, जो कलमा खुद बनकर आया था, उसको रोका जाए, और उसके वसीला से जो शहरों और दीगर गांवों में उसने अपनी मोहब्बत के चश्मे जारी करने थे, उनको रोका जाए। लेकिन हौसला पाइए, जिस तरह से यीशु मसीह गालिब आया, वो ये कहता है कि तुम अपने ईमान से गालिब आओगे। वो गलबा यूहन्ना अपने खत में लिखता है, वो गलबा हमारा ईमान है, यीशु मसीह है, वो आपको गालिब रखेगा, वो आपके वसीला से वो काम करेगा जो भी उसने अपने कलाम में आपको इख्तियार देकर, आपके साथ वादा करके, आपके साथ बोलकर आपको अपना मंसूबा दे रखा है, अपने वादे दे रखे हैं, वो उनको पूरा करेगा। क्यों? उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप हौसला पाइए, दलेरी पाइए, यीशु मसीह का कलाम आप की जिंदगी में पूरा होगा, आपके वसीला से पूरा होगा, क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो मेरे मुसलमान बहन भाई, सिख, मसीह, दीगर लोग सुन रहे हैं, एक तरीका ये कि यीशु मसीह खुद शिफा देता, खुद लोगों तक पहुंचता। और फिर इफ्सियों के खत में एक और पहलू मैं यहां पर रखना चाहता हूं, और वो ये है, 18वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसके मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। इससे मुराद ये है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन, एक तो जिस्मानी आंखें,
और दूसरे दिल की रूहानी आंखें हैं, रोशन हो जाए, तुमको मालूम हो कि जिसने तुमको बुलाया है उसकी मिरास कितनी बड़ी है। यीशु मसीह की मिरास, उसके जलाल की मिरास। और लिखा है, मैं इस तरफ आज नहीं जाऊंगा, अगले शो में इस पर मुझे बात करना है आने वाले दिनों में भी, कि उसके जलाल की दौलत, उसमें शराकत, उसकी मिरास में जो कुछ आसमान और जमीन पर सब कुछ है वो यीशु मसीह का है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, सब चीजें यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई, उसके लिए पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मेरे साथ मेरे हम मिरास हो। और पतरस रसूल लिखता है कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए हैं। इससे मुराद ये है खुदा जैसी जिंदगी, खुदा की वो तमाम नेमतें जो वो इंसान को मसीह में देता है, वो सब इंसानों की हो चुकी हैं जब वो यीशु को कबूल कर लेते हैं। तो हौसला पाइए, मजबूत रहिए, खुदामंद आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगा। ये शो खुदामंद ने इसलिए दिया हुआ है ताकि हम दलेर होकर उसका काम करें जिसने हमें बुलाया है। मुझे पता है इस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान में जो लोग खिदमत कर रहे हैं, बहुत मुखालफतें हैं। अभी मुझे पता चला कल ही एक पास्टर साहब को गोलियां मार दी गई जब वो कलाम सुनाने के लिए गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हौसलों को बढ़ाना चाहता हूं, इन मुखालफतों के, हसद के बावजूद आप यीशु के काम को जारी रखिए। और वो जो पास्टर साहब इंडिया में जिनको गोलियां मारी गई हैं, हमारी दुआ है खुदामंद उनको भी शिफा दे। और इनके वसीला से होता क्या था वो भी मैं आपको बता दूं यहां पर। उनके वसीला से खुदा बहुत बड़े बड़े मोजज़ात कर रहा था। लोग बदरूहों से आज़ाद हो रहे थे, बीमारियों से शिफा पा रहे थे, और उनको पिछले हफ्ते गोलियां मारी गई हैं। तो जहां जहां भी मुखालफतें हैं, आप जो इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये याद रखिए कि खुदामंद यीशु मसीह जिसने ये वादा किया है कि मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, वो आपके साथ है। अब दूसरा तरीका यीशु मसीह शिफा देते हैं। दूसरा तरीका जो यीशु मसीह ने दिया है वो ये है कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये आपको लूका की अंजील के 9वें बाब में मिलता है। यीशु मसीह से शिफा पाने का तरीका, एक तो खुद वो जिंदा है, शिफा देते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लूका की अंजील 9वां बाब है, यहां पर लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाहत की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। दूसरा तरीका, पहला यीशु मसीह खुद शिफा देते हैं, जिंदा हैं, आज भी मौजूद हैं। जो भी उनको पुकारता है, जैसे अंधों ने पुकारा और शिफा पाई, आज भी यीशु मसीह पुकारने पर आते हैं। बहुत से लोगों की गवाहियां हैं। दूसरा तरीका, यीशु ने अपने शागिर्दों को, ईमानदारों को ये इख्तियार बख्शा है। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा, बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाहत की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो आज जब मसीह के हवारी, मसीह के शागिर्द, मसीह के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, आसान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था वाज़े तौर पर, उसने कहा था कि मैं तुम्हें भेजता हूं, जहां पर तुम जाओगे ये करना, और अगर वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें, जहां कबूल करें वहां पर तुम सलामती की दुआ, बरकत की दुआ करना, और जहां पर तुम्हें कबूल ना किया जाए वहां से चले जाना और अपने पांव को झाड़ देना। इससे मुराद ये कि वो गवाह रहेंगे कि यहां पर सलामती का पैगाम पहुंचा था, लेकिन उसे रद्द किया गया है। तो मेरे बहन और भाइयों, जो पूरी दुनिया में आप
यीशु मसीह से वाकिफ हैं, उन पर ईमान भी है और उनकी शिफा जो तमाम लोगों तक पहुंचती थी वो जिंदा है, आज भी जारी है। और दूसरा तरीका जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और जब हम इसी बात को मरकस की अंजील के 16वें बाब में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, अब यीशु मसीह खुद और फिर अब शागिर्दों के, ईमानदारों के वसीला से वो करते हैं। लिखा है 16वां बाब मरकस की अंजील में, गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया। अब गौर कीजिए, अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत, यीशु मसीह जिंदा हैं, खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। प्यारे बहनों और भाइयों, आप बहुत रुपया पैसा जाया कर चुके होंगे, आप जगह जगह जा चुके होंगे अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए, अपने रोगों से आज़ाद होने के लिए। तो आज मैं आपके सामने मैंने ये दोनों तरीके रखे हैं, यीशु मसीह खुद और अपने लोगों के वसीला से वो शिफा देता है। आज किस तरह से ये हो रहा है आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि एक शख्स जिसके लिए ये हुआ है, आइए उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्यारे भाई हीरा लाल हमारे साथ हैं। भाई हीरा लाल, कैसे हैं आप? अच्छे हैं डॉक्टर डैनियल जी। जी बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला। मैंने अपने मुसलमान बहन भाइयों के सामने, मसीहों के सामने ये बात रखी कि किस तरह से यीशु मसीह आज भी ला इलाज इमराज से शिफा देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आप किस परिवार में आपका जन्म हुआ, धार्मिक ज़िंदगी, मजहबी ज़िंदगी कैसी थी, और फिर मैं आपसे दीगर सवालात भी पूछूंगा। मेरा जन्म हिंदू परिवार में होया, वाल्मीकि बस्ती में अपना। तो धार्मिक जिंदगी कैसी थी, मजहबी जिंदगी कैसी थी, क्या क्या करते थे आप? हम चिराग बत्ती लगाते थे, हम 5-5 चिराग लगाते थे हम। तो क्यों आप ये करते थे? हम अपनी सुख शांति के लिए, घर में जो सुख शांति होती है अभी उसमें परिवार में कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, तो आप ये सब कुछ करते थे। तो ये मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ जिससे आप यीशु मसीह तक आए? क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आपको कहीं और से नहीं हाल मिल सका? जी बताइए। अपना डॉक्टर डैनियल जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का सारी का शुक्रिया अदा करता हूँ को हमको मौका मिला पूरी दुनिया को बताने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए हमको मौका मिला। ठीक है नहीं, हम पंजाब पुलिस में होमगार्ड में भर्ती हैं। हम पहले जैसे हमारे बुजुर्ग चिराग बत्ती लगाते थे वैसे ही हम लगाने लगे। तो आगे शराब भी हम बहुत पीते थे, माथे बहुत टेकते थे, हम धूपे बहुत लगाते थे, बलियां भी देते थे हम। तो हमको पास्टर जी साहब मिले तो हमने बहुत शराब पी रखी थी। तो पास्टर जी हमको बोलते भी तुम भाई प्रभु को मानो। मैंने इनको बोला, हाँ भाई हमारा जो बाप है एक ही है, हम नहीं अलग अलग को किसी को मानते।
जी तो कोई समा ऐसा आया डॉक्टर साहब, जी बताइए। जो हमारी सज्जी टांग है उसमें दर्द शुरू हो गया। जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर बोलते थे भी अब तो वही टांग तुम्हारी काटने का समय आ गया। ये काटने का समय आ गया है। तो फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा टांग काटनी है, तो क्या उसके बाद हुआ फिर? हमारी जो भरजाई है, हमारी भरजाई ने पाटर साहब को किसी के लिए दुआ करते देखा थी। तो हमारी घरवाली को बोली भी आप सोनू पाटर से दुआ कराओ भी तुम्हारा घर वाला अच्छा हो जाएगा। तो हमारी घरवाली हमारी भाभी के पास आई। तो हमारी भाभी है जो पाटर साहब के पास हमारी घरवाली को लेगी। तो इन्होंने फिर हमारे लिए एक दुआ करी पाटर साहब ने हमारे लिए। तो क्या हुआ? हमारे लिए 3 प्रार्थना करी पाटर साहब ने हमारे लिए। तो 3 प्रार्थना करने के बावजूद हम अच्छे भले हो गए। अच्छा। ड्यूटी पर जाने लगे। ड्यूटी पर जाने लगे तो फिर हम जो वैसे ही लगाते रहे, चिराग बत्ती वैसे ही करते रहे। अच्छा। तो पाटर साहब ने हमारे साथ 2-3 महीने बाद सवाल कराया, कहते भी देखो आपको अच्छा किसने किया है? मैं हमको अच्छा भाई प्रभु यीशु ने किया है। कहता भाई आप चिराग लगाते हैं, इन्होंने अच्छा नहीं किया। कहता आप इसमें 2-2 3-3 चमचे तेल डालते हैं चिरागों में भी, इसका तो एक डंक का तड़का अच्छा लगता है 15 चमचों का। तो मैं कहा भी बात तो ठीक है। तो हमने जब ही जो फोटोआं थी चिराग से इकट्ठे किए, इकट्ठे करके लिफाफे में डाले और फोटोआं भी लिफाफे में डाल दी। तब पाटर साहब को बोला भाई पाटर साहब भी आप इनके लिए प्रार्थना करो, इनको जाने दो जहां के जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। फिर कुछ समय ऐसा आया हमारी जिंदगी में 2-3 साल बाद भी हमारी आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा। घर में कोई नहीं था हैगा, मैं था, हमारे लड़के थे। तो थाने वाले भी देखते भी ये क्या हो गया, ये भी पूरी जो रोपड़ जिले की पंजाब पुलिस है वो हिल गई भी ये अंधा हो गया, ये क्या बात हो गई। जो हमारे महकमे में थे वो भी बोलते भाई बीमा आप 1.5 लाख बनता है ले लो, आपकी नौकरी दफा दफा है। तो हमको पाटर साहब ले गए मोहाली अस्पताल में गए लेके, हमारे घर वाले के साथ ही थे। वो अस्पताल वाले बोलते हैं भी भाई 2 लाख रुपये लगेगा आपका, 50,000 जमा करा दो, 1.5 लाख आप किस्तों में दे देना। हमारी घरवाली हमको बोली आके भी ऐसे 2 लाख रुपए मांगते हैं, माँ भी चलो घर को चलते हैं, वहां जो खुदा करेगा भी अच्छा करेगा। तो हमने आके फिर आपके दास के जो हमारी संघ कलीसिया थी उससे प्रार्थना कराई। तो सबने प्रार्थना करी, रब के दासों ने भी सबने प्रार्थना करी। तो हमारी चौथे दिन आंखों की रोशनी थी वापस आ गई। आज हम बिना ऐनक से अखबार पढ़ लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छे बाइक भी चलाते हैं, हम सभी काम करते हैं। आप ये बताएं कि ये जब डॉक्टरों ने कहा था कि आपकी जो रोशनी है ये ख़त्म हो गई है, आपको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो हाँ जी, पास्टर साहबान को आपने बुलाया कि वो दुआ करें आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उन्होंने दुआ की, कैसे दुआ की, और फिर ये शिफा आपको कितने दिन के बाद मिल गई, ये थोड़ा सा बताइए हमें। देखो जी, सारी संगत ने साडे लिए दुआ की अपना, सारी कलीसिया ने हमारे लिए दुआ की। तो फिर हाँ, जो हमारे घर वाले थे
انہوں نے سب کو 10 کو بھی فون کر دیا, ہماری سسٹروں نے بھی. تو سب نے ہمارے لیے پرارتھنا کی. 3 دن لگاتار پرارتھنا چلتی رہی جی. تو تیسرے دن کیا ہوا پھر؟ ہاں جی, 3 دن پرارتھنا کے بعد پاٹ صاحب پھر چوتھے دن ہماری آنکھوں کی روشنی دی جو پرمیشور نے ایٹومیٹکلی یہ واپس کر دی. اب یہ میں آپ سے یہاں پر پوچھوں گا کہ یسوع مسیح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی جی دعا کرنے کے وسیلہ سے. تو جب آپ کو یہ روشنی مل گئی آپ کو کیسا محسوس ہوا, کیسا لگا آپ کو؟ ہم کو تو جنت مل گئی جی. اچھا جو دنیا کا چانن پربھو یشوع ہے, اچھا, اس نے ہم کو چانن دیا ہے, ہماری آنکھوں کی روشنی دی ہے جو کسی قیمت پر بھی ہم کو نہیں مل سکتی تھی. یہ پرمیشور کا بہت شکریہ ہے, خدا کا بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہاں جی, ہاں جی, یہ معجزات آپ فرمان قرآن میں, اناجیل میں آپ پڑھتے ہیں, اور میں نے شروع میں آپ کے سامنے چند آیات رکھی ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اور آیات جو ہیں یسوع مسیح کس طرح سے لوگوں کو اچھا کرتے تھے, ابھی آپ نے یہ دعا کے وسیلہ سے دیکھا ہے کہ کلیسیا نے دعا کی, پاسٹر صاحبان انہوں نے دعا کی, اور کس طرح سے یسوع مسیح آپ سن اور دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح نے ان کی روشنی, آنکھوں کی روشنی, بینائی ان کو دی ہے. اب یہ کیسے ہوتا تھا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا. ایک دو جو اقتباس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ پطرس کس طرح سے 2 جگہوں پر جاتا ہے, اور آج بھی آپ کے چوگرد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسیحی رہتا ہے, چرچز ہوں گے, اور جو مسیح کے حواری ہیں, صحابہ ہیں وہ, اور پھر ان کے بعد اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب دیکھیں تو میں آپ کے سامنے تعلیمات رکھ رہا ہوں. جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں شو کو یا دیکھیں گے, میں دعا کرنے کے بعد خدا سے اس کا کلام مانگنے کے بعد پھر میں یہاں پر آپ کے سامنے آتا ہوں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات جو میری اپنی طرف سے ہو وہ نہ ہو. خدا کا روح, خدا کا کلام جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچے. اور اس وقت آپ جو دیکھ اور سن رہے ہیں یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے. اس شو میں یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا, دنیا کا نجات دہندہ, تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے, چونکہ اس کا حکم یہ ہے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. اور اس محبت کی ترتیب خدا نے اپنے کلام میں دے رکھی ہے, اور یوحنا کے 17 باب میں یہ یسوع مسیح کی دعا ہے جو اس 17ویں باب میں آپ کو ملتی ہے. اور میری یہ درخواست ہوگی جتنے مسیحی ہیں, مسلمان, ہندو, سکھ, جو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, اس میں یسوع مسیح کا دل, اس کے احساسات کی عکاسی اس دعا میں کی گئی ہے. اور اس میں وہ فرماتے ہیں, آپ پورا باب پڑھ لیجئے, کہ میں نے تیرا کلام ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اسی باب میں کہ میرے کلام کو انہوں نے قبول کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جو ان کے وسیلہ سے کلام کو قبول کریں گے. اور پھر اس کے بعد
जो लोग इस कलाम को कबूल करेंगे। मतलब ये है कि ये पैगाम पहुंचता रहेगा, ये शिफा का काम, ये ज़िंदगी का चश्मा जो हुजूरुल मसीह की ज़ात से है, ये जारी और सारी रहेगा। और आज भी पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं। और खुदा का बंदा पतरस जो हवारियों में से एक था, जब वो लुदिया और याफा में पहुंचा, ये अमाल की किताब का 9वां बाब मैं आपके सामने पढ़ता हूं और फिर हीरा लाल से दोबारा बात करेंगे। और ऐसा हुआ, ये 32वीं आयत है, और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदिया में रहते थे, और वहां एनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुदिया और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदामंद की तरफ रजू हुए। अब ये खुदामंद का हवारी है सहाबा में से, और ये लुदिया के इलाका में आता है। और प्रोनाउंसिएशन की अगर कभी गलती हो तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता रहता हूँ। अगर प्रोनाउंसिएशन की हो जाए, ये अल्फाज हैं, इलाकों के नाम हैं, कभी कभी दुरुस्त तलफ़ुज़ होता है, कभी नहीं होता, लेकिन असल जो नुक्ता है वो ये है कि ये शख्स इस इलाके में पहुंचा है। और उस इलाके में हुआ क्या है, ये अहम बात है कि वहाँ पर उसे पता चला कि 8 बरस से एक शख्स मफलूज है, और ये शख्स जिसके साथ मत्ती की अंजील में कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, और मरकज़ की अंजील के 16वें बाब में कि वो उनके साथ साथ मोजज़ात को, कलाम को मोजज़ात से साबित करता रहा। अपने जो वादे हैं उनको वो साबित करता रहा। और वादे क्या है कि वो साथ है और तुम जाओगे, बीमारों को शिफा दोगे। और पतरस यहां पर पहुंचा, और अल्फाज ये हैं, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। और वो मफलूज उसी लम्हे उठ खड़ा हुआ। उसके बाद हम 36वीं आयत में देखते हैं, और याफा में एक शागिर्दा थी जिसका नाम तबीता नाम था, जिसका तर्जमा है हरनी। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और उन्हीं दिनों में, और चूंकि लुदिया याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर पतरस वहां है 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे उसे दिखाए। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई, और बतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नाम दबा के यहाँ रहा। ये बाइबल की सच्चाइयाँ, यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह नासरी के वादे जो हाँ और आमीन के साथ हैं। जो कुछ उसने फरमाया, हम उसका वकू, हम उसका इजहार, उसका ज़हूर, उसकी फुलफिलमेंट, उसकी तकमील देखते हैं कि वही कुछ जो यीशु मसीह ने कहा वो हवारियों के वसीला से हुआ। और यूहन्ना 17 बाब यही जो ईमानदार मुख्तलिफ ज़मानों में होते रहेंगे उनके वसीला से होता रहेगा। भाई हीरालाल जी, ये बताइए कि अब आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? हम जी, यीशु मसीह की खिदमत आप किस तरह से कर रहे हैं? अब हम देखो ड्यूटी भी करते हैं। जब हमको छुट्टी होती है तो हम परमेश्वर के दास के साथ जाके सेवा करते हैं।
जी बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं या देखेंगे, मुझे पता है आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन शुक्रिया कि आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। इस वक्त जो लोग बीमार हैं या जो लाइलाज अमराज में मुब्तला हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हम तो उनको यही स्नेहा देंगे कि प्रभु यीशु के पास आओ और अपना शिफा पाओ। कैसे वो यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, ये बताइए। विश्वास के साथ। विश्वास के साथ। और हमने ये देखा कि जो अंधे आए, उन्होंने कहा क्या तुम एतकाद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? और अंधों ने कहा हाँ ए खुदावंद, हम एतकाद रखते हैं। और उसने छुआ और उनको शिफा मिल गई। आप अब ये बताइए कि ये जो शो है ना, ये पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और देखते रहेंगे, ये रिकॉर्डेड हो गया है। खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे। माफ कीजिएगा। अगर आप के पास यही वक्त हो, सोच कर बताइएगा, तो पूरी दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम दुनिया को ये पैगाम देंगे, ऐ दुनिया के लोगों, यीशु मसीह के पास आओ, ये आपको शिफा देंगे, आपको निजात देंगे। तो आप ये भी बताइए कि अब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपने उनको खुदावंद माना है। कैसे आपने उनको खुदावंद माना, कैसे अपनी जिंदगी उनको दी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं यीशु पर ईमान लेके आया जी। क्या आपने कहा यीशु मसीह को? ये मैं चाहता हूं कि लोग देखें और सुने। क्या कहा था आपने यीशु मसीह को जब उस पर ईमान लाए? तो आपने क्या कहा उसको कि किस तरह से वो आपकी जिंदगी में आए, कैसे आप ईमान लाए, ये थोड़ा सा बताइए। देखो डॉक्टर डैनियल जी, हम जब प्रभु में आए तो हम अंधविश्वासी थे, तो हमको परमेश्वर के दास ने, हमारी भाभी के द्वारा हम परमेश्वर में आए। उसके द्वारा हम परमेश्वर में मान लाए और तौबा की, बपतिस्मा लिया। मैं गुनहगार हूं, परमेश्वर ने हमको क्षमा किया। आप बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपके लिए बोलना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत से लोग जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं, तमाम लोग इतने गिफ्टेड नहीं होते, इतने ज़्यादा बोलते सब हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जज्बात का इजहार, ख्यालात का इजहार उस तरह से नहीं करते जिस तरह से बहुत से लोग कर सकते हैं जिनके पास बोलने का गिफ्ट होता है। लेकिन हीरा लाल के अल्फाज से आपको पता ये चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये शख्स जिसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, यीशु मसीह ने उनकी आंखों की रोशनी बहाल की है। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं उन पर ईमान लाया हूं। और जब आप हीरा लाल जी यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, तो अब आपके पास क्या तसल्ली है, क्या यकीन है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है? क्या आपके पास यकीन है, तसल्ली है कि आप जब इस दुनिया को छोड़ेंगे आप कहाँ होंगे? यीशु मसीह में जो ईमान है आपका, उसके मुताबिक ये पूरी दुनिया को बताएं कि आपको यीशु मसीह में ईमान जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं। ये मैं चाहूँगा कि दोबारा आप थोड़ा सा बताइए लोगों को। डॉक्टर डैनियल जी, हमको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, नई हमको आंखें दी है। परमेश्वर का ये बहुत शुक्रिया अदा है, हमको अच्छा जीवन जीने के लिए दिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे जल्दी से ये पूछूंगा, आपने बताया कि आपको नया जीवन दिया है, नई जिंदगी दी है। और प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो नई जिंदगी है, इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ओरिजिनल ज़ुबानों में, उससे मुराद है खुदा जैसी ज़िंदगी, मतलब ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। यीशु मसीह ने फरमाया था जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और मैं आखिरी दिन उसे फिर ज़िंदा करूँगा और वो मेरी बादशाहत में मेरे साथ होगा। ये है जो उन्होंने कहा कि मुझे नया जीवन मिल गया है।
आंखें जो बंद, बीनाई चली गई, आंखें मिल गई, यीशु मसीह शिफा भी देता है। और फिर उन्होंने कहा अब जो मेरी ज़िंदगी है ये खुशहाल ज़िंदगी है। और पौलुस रसूल इस बात को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं ज़िंदा ना रहा, मसीह मुझ में ज़िंदा है। ये जो ज़िंदगी मैं ज़मीन पर गुजारता हूँ ये यीशु मसीह की ज़िंदगी है, ये उसके लिए ज़िंदगी है। और जो कोई भी मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। इससे मुराद ये है कि वो गुनाह की खसलत, वो गुनाहों की ग्रिप, गुनाहों में जकड़े हुए लोग, पुरानी इंसानियत वो ख़त्म हो गई। गुनाह का ज़ोर, इब्लीस का ज़ोर, इस दुनिया के हम शक्ल बनने वाली आदत वो ख़त्म हो गई हैं। और ये ज़मीन पर ये ज़िंदगी है कि मैं अपने बुलाने वाले को खुश करूं। और पौलुस रसूल ये भी कहते हैं कि अगर मैं इंसानों को खुश करने वाला होता तो खुदा का खादिम ना होता। खुदा ने तमाम मसीहों को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है कि वो खुदा से मोहब्बत करें, इंसानों से मोहब्बत करें। और ये यीशु मसीह है जो आपको बीमारियों से भी आज़ाद करता है और आपको हलाकत से छुड़ाकर ज़िंदगी देता है। और इस ज़मीन पर वो ज़िंदगी जो खुदा को खुश करने वाली है वो गुजारने के लिए अपनी ताकत और कुव्वत भी अता फरमाता है। बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ज़िंदा हैं, वो खुद भी शिफा देते हैं। और हमने कलाम में से देखा दूसरा तरीका, वो अपने हवारियों, अपने शागिर्दों, अपने लोगों, ईमानदारों के वसीला से भी शिफा देते हैं। और ये ज़िंदगी का पैगाम उन्होंने अपने अल्फाज जो मत्ती की अंजील में हैं, उन्होंने फरमाया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों तक ये मोहब्बत का, मुआफ़ी का, हमेशा की ज़िंदगी का, शिफा का पैगाम पहुँचाओ। और यही पैगाम है जो हम प्रोग्राम फजल रबी में आप तक पहुँचाते हैं। ये शिफा ज़िंदगी पाने का सिलसिला खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले शुरू किया था। अपने लोगों के वसीला से वो इसको जारी रखे हुए हैं। क्या आपकी कुछ ऐसी नीड्स हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसी मुश्किलात हैं, बीमारियां हैं, इब्लीस के हमले हैं, आप दुनिया के ठुकराए हुए हैं, लोगों ने आपके खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियां की हैं, आप बेसहारा अपने आप को महसूस करते हैं, कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इन अंधों को, जो 2 अंधे थे, यीशु मसीह नज़र आया। उन्होंने कहा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और यीशु मसीह ने उनको अपने पास बुलाया और उनकी बीनाई को रोशनी में बदल दिया। आपके लिए भी यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं जैसे हीरा लाल जी के लिए हुआ, दीगर बेशुमार लोगों के लिए वो कर रहे हैं। आप भी अपने ख़ानदान में, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गांव में ये बरकत पा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।